Okay, Sagar, let's proceed ahead with your mock, mega mock for BARC. And me, Dr. Atinder and Virendra Saklani sir will be proceeding forward with your mock. So, Sagar, can you tell us your favorite subjects? Sir, it's strength of materials, fluid mechanics, heat transfer, basic thermodynamics, and RAC. Okay, so I start with thermodynamics and followed by other mentors then. Fine? Sure, sir. Okay. So, Sagar, in thermodynamics, you know, there are a couple of laws. Yes, sir. Okay. So, how many laws have you studied? So 3 laws. 3 laws or 4 laws? Well, yes, sir. 4 laws. 4 laws. Yes. What sir. is the significance of third law? So the third law basically says that at an absolute 0 Kelvin temperature, the entropy of a system remains constant. Are you sure this is the law? Think again. Yes, sir. Absolute entropy remains constant. What is the meaning of that? So at an absolute 0 Kelvin temperature, the entropy of a system remains constant. Entropy of the system. Yes, sir. Remains constant. Yes, sir. So it remains constant, or it remains maximum, or it remains 0? So sorry, sir, I can't say. Okay, I give you a glass of water. How shall you measure its absolute entropy? So first, entropy is basically it's can be measured by 2 things. One is the external irreversibility, other one is the internal irreversibility. So the glass of water, sir, it depends कि उसका temperature क्या है with respect to the ambient. तो अगर वो temperature ज़्यादा होगा उसके ambient से respect में, so definitely sir it will reject the heat out. तो उससे से external irreversibilities आएंगी. And definitely sir internal irreversibilities भी हो सकती हैं if there's. चलिए मेरे को ये बताइए, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है एब्सोल्यूट 0 पे, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी एब्सोल्यूट 0 पे? सर 0 हो जाएगा. इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी. और एंथैल्पी? सर if it's an ideal gas then हाँ एंथैल्पी 0 हो जाएगा सर एब्सोल्यूट 0 पे. जी सर. इसका मतलब ये है कि तुम एब्सोल्यूट 0 पे चीजें मेजर कर पा रहे हो. हाँ. इसका मतलब एब्सोल्यूट 0 तुम अटेन कर सकते हो. सर वेल प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है सर. हम लोग एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे काम नहीं करते हैं. काम नहीं करते या तुम्हें मिल ही नहीं सकता एब्सोल्यूट 0? Well, I'm not like I can't comment, sir, but practically I don't think, sir, कि हम लोग -273. Okay, you know Carnot cycle efficiency? Yes, sir. Can I get efficiency 1? No, sir. If you cannot get efficiency 1, temperature of heat rejection cannot be 0. Yes, sir. As per formula of Carnot efficiency. Yes, sir. If T2 is 0, efficiency will be 1. Yes, sir. That means T2 cannot be 0. Yes, sir. तो यहाँ से तो ये लग रहा है 0 केल्विन आ ही नहीं सकता. और अगर 0 केल्विन नहीं आ सकता तो मैं एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी मेजर ही नहीं कर सकता 0 केल्विन पे. चलिए मेरे को ये बताइए, यूनिवर्स की एंट्रोपी हाउ डज इट चेंज विद पैस ऑफ टाइम? Sir, universe is an example of an isolated system. So universe की entropy sir it will be always greater than or equal to 0. तो अगर सर मैं universe को as a system अपना assume करता हूँ सर, तो मैं कह सकता हूँ सर कि अंदर कोई भी irreversibilities हो रही हैं अंदर. अगर system अगर if I consider universe as my system, उसके अंदर सर कुछ भी irreversibilities heat exchange हो रहा है. So there are internal irreversibilities, but there is no heat exchange from the from that my system as a universe. तो heat generation quantity मुझे पता है it's a positive quantity always. So उसका entropy तो always positive आएगा sir. It will be always greater than 0. It is always increasing, decreasing, or remaining constant. Entropy of the universe. The question is entropy of the universe is with passage of time remaining constant, increasing, or decreasing. So, well, I would say, sir, that if there are no internal irreversibilities, then it will be remain constant. But there are internal irreversibilities. As you know, real processes are all irreversible processes. Yes, sir.
So universe, when we are saying, that means that is a real thing. Yes. And the processes taking place inside are real processes. Yes, sir. So That they means are internal reversibilities. तो Yes, एंट्रोपी जनरेट भी होता है. जी सर. तो क्या हो रहा है एंट्रोपी को? तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा सर. कब तक इंक्रीज करेगा? सर ये तो इनफाइनाइटली टाइम के लिए होगा सर, क्योंकि जनरेशन एंट्रोपी तो हमेशा होता रहेगा सर. कभी तो रुकेगा. सर जब इंटरनल मान लो ये इक्विलिब्रियम आ गया, मैंने बोला इक्विलिब्रियम आ गया अभी, तो एंट्रोपी क्या होगा इक्विलिब्रियम पे? सर अगर इक्विलिब्रियम आ गया है सर, देन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे 0 हो जाएगा. देन इन दैट केस सर वी कैन से कि एंट्रोपी यहाँ पे रेट ऑफ द चेंज ऑफ एंट्रोपी यहाँ पे 0 हो जाएगा. एंट्रोपी कैन रिमेन कांस्टेंट इन दैट केस. अगर एक सिस्टम को अगर मैं देखता हूँ इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो कैन वी से एंट्रोपी अब मैक्सिमम हो गया है? सर कह सकते हैं सर. इफ हाँ ds is equal to 0 then maybe sir it is a possibility कि यहाँ पे एंट्रोपी मैक्सिमम हो गया है. And what about energy? With passage of time, what happens to energy of the system? Sir, maybe the quantity of energy may remain same, but sir, the quality of energy may degrade. And what do you mean by quality of energy? So, quality of energy, like the work done, the actual work what we are getting from the system is the what I define as an energy for me. Okay, and the quality of energy with passage of time decreases. How can you say that? सर क्योंकि कोई भी हम लोग जो अपने रियल इंजन्स हैं सर, जो हम लोग प्रैक्टिकली चलाते हैं, इट इज नॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इट इज आइदर इट इज एट अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मुझे हीट नहीं मिल रहा होता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे हीट मिलता है. तो एक मुझे पता है सर कि आई गेट अ मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी एट अ मैक्सिमम टेम्परेचर. बट क्योंकि प्रैक्टिकली ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है, so the temperature is slightly less than the maximum temperature. So from the second law of thermodynamics, I can state sir that the quality of energy will be less. Because, let me ask you. You know there are two kind of energies: renewable energies and non-renewable energies. yes. Tell me about the quality of renewable energy and non-renewable energy. Which has more quality? And answer carefully. What do you mean by that? Well, I think, sir, the renewable forms of energy will, with the passage of time, sir, I think it will have a constant, high quality of energy will be available from that. No, my question is very straight. Sir, I think, sir, sorry, sir. So I think from the non-conventional, the non-renewable sources of energy, the quality of heat obtained from there can be higher as compared to the renewable sources of energy, sir. You mean quality of energy obtained from non-renewable is more? Yes, sir. How do you define quality of energy? So, for example, if I can take an example, sir. So, like if I have an engine, two engines, one it is operating at a temperature of 500 Kelvin, say, another one is at 1000 Kelvin temperature. So I can observe, sir, that the efficiency observed from the higher temperature source will be more than that of the lower temperature source, which means that the work done will be more for the higher temperature source. What I can observe, what I understand from this case is, sir, कि जो renewable source से हमें जो energy मिलेगा, sir, like जो sun से हमें energy मिल रहा है, definitely there are some few losses कि sun से जो heat pass कर रहा है हमारे earth के surface में, there will be some loss of energy. बट सर नॉन कन्वेंशनल या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को सर हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं टू जनरेट हीट. मैक्सिमम टेम्परेचर वहां से जनरेट कर सकते हैं सर. तो आई थिंक इन दैट केस द क्वालिटी ऑफ एनर्जी विल बी मोर. Do you think quality of energy and efficiency of engine are the same thing? No, sir. By quality, available energy and quality is same thing? Sorry, sir. Available energy and quality, do you think they are the same thing? Sir, available energy means the work done. That means that is the meaning of work done. Yes, sir.
Yes. So what interpretation you gave in terms of efficiency, that is more close to available energy. Okay. It may be possible that the energy is high quality, but you are not getting more efficiency when you are harnessing it. Yes, sir. What do you mean by quality then? Let me tell you, quality of energy, high grade energy or high quality energy is that which can be converted into other forms easily. Yes. Without much losses. Yes, sir. The high grade energy can be converted into low grade energy, but partially. Yeah, Yes, but sir. if low grade energy cannot be fully converted into high grade energy, that is how Yes, we define quality of energy. okay, sir. Now, can you tell something about renewable and renewable and non-renewable? There is a trouble which is coming actually when we are trying to convert fossil fuel, chemical energy into work. There's a lot of losses in the Yes, form sir. of heat energy and all. So how can you say they are high quality energies? They are not. There are losses, but think of wind turbine. When you're trying to harness those energies, you don't have losses in the form of heat energy. You're getting work directly in the form of shaft work. That means a wind turbine has, can we say it has high quality energy compared to petrol or chemical energy? Yes, sir, we can, because in an IC engine, if I would say, then they are definitely, sir, the losses are there. There are the frictional losses, there are the heat losses, internal irreversibilities. So in that case, sir, the energy obtained will be slightly less. Yeah. And if we are getting high grade energy, it can be converted into many forms. Yes, sir. And the most useful form of energy is the work. Yes, sir. Well done. Yes, sir. So renewable is that way good. Okay. But then why we are not using renewable energies to that extent, Sagar? So I think harnessing that renewable energy is a difficulty at this point of time. Harnessing that complete, uh, so I think converting a low grid energy completely into a high grid energy is not possible, sir. So जो हमारे पास energy मिल रहा है सर, मान लीजिए if I'm talking about a solar energy, जो हमें heat मिल रहा है in form of, तो वो एक low grid energy है. तो उस low grid energy को completely high grid energy में convert करना it's not completely possible. तो इसीलिए सर. Okay, do you know what is irreversibility? Irreversibility. Yes, sir. Yes, sir. Suppose I rub my hands like this. Yes, sir. What will be irreversibility involved? So there will be heat generated inside due to the rubbing of hands, and definitely heat generate होगा सर, तो internal irreversibility होगा उसमें. कैसे क्वांटिफाई करेंगे आप उसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर उसका फॉर्मूला है सर, बट क्वांटिफाई करना सर इट्स नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल आई थिंक. How do you calculate irreversibility? There is a formula. There's a formula, yes sir. What is that? So is irreversibility is I equals to T naught into delta S of a universe. Can you calculate T naught is the room temperature? Yes. Can't you calculate delta S of universe involved in this? So delta S of universe is nothing but just summation of system plus the surrounding. Yes, go ahead. So if I take my hand as a system, neglecting the effects on the surrounding, तो surrounding entropy zero हो जाएगा. सिस्टम के अंदर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज आएंगी सर, तो उसको ये जो मैंने हैंड रब किया, इसमें सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है? सर मेरा हाथ सिस्टम है, उसके अलावा समथिंग सराउंडिंग है. चलिए मेरे को ये बताइए कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ी या कम हुई? सर बढ़ी है सर. और सराउंडिंग की? सर अगर मेरा हीट, अगर मैं ये केस मान के चलूं सर कि मेरा हीट जो है वो मेरे सिस्टम को क्रॉस कर रहा है, देन सराउंडिंग के एंट्रोपी से हीट ऐड होगा, उसकी वजह से इंक्रीज करेगा. तो इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी बढ़ेगी? जी सर. नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है, एक की कम होती है एक की बढ़ती है, बढ़ सकती है दोनों की? सर मैं कह नहीं सकता सर. ओके, ओवर टू यू डॉक्टर अतिंदर.
Thank you, sir. Okay, Sagar, let's start with the first question. So suppose I have a material, solid material, and I have three sensors, temperature sensors. So Yes. I attach two temperature sensor on the boundary of that material, whereas one sensor at the center. Sorry, sir, I'm not audible, sir. Okay. Let me. Sorry. Let me draw this. Okay. Is this visible? Screen is visible to you? Yes, sir, it is visible, sir. Okay, so I have this material and I have three temperature sensors. One is here, one is here, and one is here. Okay, so the reading of this temperature sensor is giving me 100 degrees Celsius. This is giving me 100 degrees Celsius. This is a solid material. And this is giving me 200 degrees Celsius. Yes, How sir. can this happen? Sir, this is a case of an internal heat generation, sir. Okay. Symmetric case of an internal heat generation. Okay, can you give me an example where practically this can happen? Sir, an electric current passing through a wire. Okay. Any other example? Sir, nuclear fuel rod. Very good. Any other example? Sir, ripening of fruits. Okay. How it is generating heat inside the ripening of fruits? So that is an internal process, I guess, sir, because something internally is happening, and because of which it develops, it grows inside, or fruit banta hai, sir. Okay. Or if I would say, sir, another example as a cutting of a concrete slab is also an internal heat generation case. Cutting of a Concrete slab. Okay. Yes. Okay. In that case, suppose this is a concrete slab, and I am trying to cut it from here. Yes, sir. So will I get 200 here and 100 here? I mean, temperature distance between this and this point? No, sir, I won't, sir. So how it is heat generation then? No, while cutting the slab, sir, जो जिस एरिया में हम कट कर रहे होते हैं, ड्यू टू द रबिंग एक्शन, वहां पे सर हीट जनरेट होगा. बट हाँ, डेफिनेटली सर, सॉरी, वहां पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटर पे 200 नहीं बोल रहा मैं, तो क्या मतलब सपोज करो मैं इस मटेरियल को यहाँ कट कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर यहाँ राइज करेगा कि यहाँ राइज करेगा? सर जहाँ कट कर रहे हैं सर वहां राइज करेगा सर. तो क्या वो इंटरनल हीट जनरेशन के अंदर आता है कि कोई और मतलब आ रहा है, कुछ और के अंदर आ रहा है? सर वो इंटरनल हीट जनरेशन से हो रहा है सर. ओके. ओके, कोई और एग्जांपल पता है इसके अलावा? सॉरी सर. ओके, कोई बात नहीं. तो सपोज करो आई हैव दिस composite material. This is conductivity K1, this is conductivity K2. Here I have 100 degrees Celsius, here I have 100 degrees Celsius. And internally I want to check the temperature profiles. So this is L, this is also L. Can you plot the temperature profile inside the slab? Okay. So ये K1, K2 का values, if K1 is greater than K2? कुछ भी ले लो, K1, K2 ऐसे ले लो, चलो एग्जांपल है. सर दोनों एंड्स में टेम्परेचर सेम है. डेफिनेटली सर अंदर अगर मैं ये केस मानूं सर कि मेरा कंपोजिट स्लैब हीट को रिजेक्ट कर रहा है, मतलब सर डेफिनेटली अंदर में हीट जनरेशन हो रहा है. तो क्यों हीट जनरेशन क्यों हो रहा है? सर क्योंकि
डेफिनेटली सर मेरा हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट टू अ लोअर टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफर को होना है सर, तो डेफिनेटली बोथ साइड से वो हीट को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि बोथ साइड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, अगर दोनों तरफ 100 डिग्री सेल्सियस से हीट जनरेशन भी नहीं हो रही तो कैसे होगा? सर इन दैट केस सर मेरा टेम्परेचर प्रोफाइल नहीं बनेगा सर, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा आई थिंक। हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो सपोज करो मैं एक स्लैब बना लूं कंपोजिट का और उसको 100 डिग्री टेम्परेचर में रख दूं, ओके। तो तुम कहना चाह रहे हो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा? नहीं सॉरी, जो गरम स्लैब है हीट ट्रांसफर होगा सर डेफिनेटली, वो बाहर की तरफ होगा सर, उसका डायरेक्शन बोथ साइड सिमेट्रिकली वो दोनों साइड से बाहर निकालेगा उसको। तुम अज्यूम क्या कर रहे हो, स्लैब 100 डिग्री से ऊपर है? सर अगर मैं मोल्टन स्लैब की बात कर रहा हूँ जो हम लोग कास्टिंग करके लाते हैं सर, तो उसको अगर मैं एम्बिएंट एयर में रख दूं दैट केस। ओके, तो बनाओ उसकी प्रोफाइल बनाओ, कैसे चेंज होगा उसके अंदर, टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा? अच्छा, ये प्रॉब्लम स्टेडी है क्या अनस्टेडी है? सर अगर हम टाइम को एज अ वेरिएबल लेंगे तो अनस्टेडी हो जाएगा, ट्रांजिएंट केस आ जाएगा सर ये। अगर टाइम को वेरिएबल लेंगे क्या मतलब है, मतलब लेना चाह अपनी मर्जी है अपनी, नहीं लेना है सर, कि नहीं लेना? कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं सर कि तो कौन सी कंडीशन पे डिपेंड करता है ये मतलब अनस्टेडी होगा कि स्टेडी होगा? सर इफ द प्रॉपर्टी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, देन सर वो मेरा अनस्टेडी केस में आ जाएगा। इफ इट इज नॉट वेरिंग सर तब स्टेडी होगा। इस केस में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी विद टाइम वेरी करेगा कि नहीं करेगा? सर वो थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे प्रॉपर्टी है सर, तो उसको अगर हम लोग कांस्टेंट मानेंगे सर, तब यहाँ पे सर हम लोग उसको स्टेडी केस मान सकते हैं सर। चलो स्टेडी केस मान लिया, अब बताओ भी प्रोफाइल कैसे बनेगी? सर यहाँ पे एक पॉइंट ये है सर कि मतलब मुझे ये चेक करना होगा कहाँ पे मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है सर, कंपोजिट स्लैब में मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे है, वहां से मेरा हीट डिस्पर्स करना चालू करेगा। एंड क्योंकि सर मैंने यहाँ पे अपना कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी माना है सर, एंड आई एम अज्यूमिंग अ स्टेडी फ्लो और क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट। स्टेडी फ्लो कहाँ से आ गया? सर स्टेडी स्टेट ले रहे हैं सर, स्टेडी स्टेट। फ्लो कहाँ से बोला तुमने? तुमने फ्लो बोला। यस सर, सॉरी सर, स्टेडी स्टेट। ओके, स्टेडी स्टेट अगर हम ले रहे हैं सर, the material to be constant, the thermal conductivity constant and constant surface cross sectional area, in that case मेरा टेम्परेचर प्रोफाइल जो होगा वो लीनियरली डिक्रीज करेगा। ओके, एग्जिट में आपने ये कंडीशन दिया था सर कि the thermal conductivity K1 is more than K2, तो जब मैं टेम्परेचर स्लोप को निकालूंगा सर, आई वुड से इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon the K थर्मल कंडक्टिविटी। तो K1 ज्यादा होने की वजह से स्लोप जो होगा उस फर्स्ट स्लैब का कम होगा सर कंपेयर टू द सेकंड केस में। ओके, ओके, यस सर। तो एक ड्रॉ कर दो, रफ सी ड्रॉ कर दो कोई भी लाइन, और मेरे को दिखाओ भी कैसे वेरी करेगा उसके अंदर। So I think तो कुछ इस तरह से फॉर्म होना चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम टेम्परेचर, ये दोनों लाइन की स्लोप अलग अलग है, ठीक है, K1 की ज्यादा है, K2 की कम है। अच्छा, ओके ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ग्लास है वाटर का, उसकी वॉल पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करके बताओ कैसे वेरी करेगा? तो उसकी वॉल पे पानी का गिलास है, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वॉल पे प्रेशर कैसे वेरी करेगा और कैसे निकालेंगे कितना प्रेशर है? सर मेरा मेरा वाटर स्टैटिक में है सर। हाँ हाँ, मूव नहीं कर रहा है। सर तो मैं यहाँ पे अपना हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगा सकता हूँ सर। हाँ लगाओ। तो मैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ से कह सकता हूँ कि सर dP by dH is equals to plus minus of the specific weight rho g
तो Okay. अगर सर मैं मेरा फ्लूइड अगर यहाँ पे सर इनकॉम्प्रेसिबल है, फ्लूइड में पानी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सर मेरा जो प्रेशर होगा सर वो लीनियरली हाइट से वेरी करेगा। तो ओके, अगर मैं सरफेस से देखूंगा सर अपने ग्राउंड अपने बेस पे, तो सर वो लीनियरली इंक्रीज करता हुआ दिखेगा सर। इंक्रीज करता रहेगा। तो सपोज करो ये ग्लास की वॉल है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। जी अब एक काम करो, यहाँ पे होल करते हैं, यहाँ पे होल करते हैं और दोनों को एक पाइप से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। अब बताओ भी फ्लो किस डायरेक्शन में होगा उस पाइप और कब तक होगा? मतलब कि हमने पाइप को कनेक्ट किया है टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लूइड फ्लूइड के। हाँ नहीं, ग्लास के। हाँ ग्लास के। बना के दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। तो ये अपना ग्लास है, ठीक है, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता, और मैंने यहाँ से ऐसे ट्यूब को कनेक्ट कर दिया, ऐसे एक चैनल बना दिया। अब एज यू सेड कि प्रेशर ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर पी बॉटम जो है वो ये है और पी अप जो है ये है, ठीक है, अपर पार्ट में। तो यहाँ बताओ कि पर फ्लो कैसे करेगा और कब तक करेगा? सर एक क्वेश्चन है कि सर टॉप ऑफ द जो पाइप है सर इट इज कनेक्टेड टू द वाटर लेवल एज वेल ना? नहीं, कैसे मतलब? सर मतलब कि मेरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है एंड जो टॉप पाइप है वो पानी पानी है मतलब वहाँ पे। हाँ मतलब ये मान लो भी इनफाइनाइट मतलब ओके ठीक है लंबा सर। है, पानी का सर लेवल नीचे नहीं आने वाला, पानी का लेवल यहीं रहेगा। ओके ठीक है सर। आई थिंक पानी हमारा सर पाइप से वहां से फ्लो होते हुए नहीं जाएगा सर। अच्छा, तो यहाँ से कहाँ से फ्लो करते नहीं जाएगा? सर नीचे से सर, अच्छा, क्योंकि ये जब हमने डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। हाँ ओके, नहीं करेगा। ओके, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? सर क्योंकि मुझे पता है सर कि कोई भी फ्लो को होने के लिए इट इज द टोटल एनर्जी विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो ओके, यहाँ पे सर नीचे में भले ही प्रेशर ज्यादा है सर, बट आई हाँ, थिंक अंदर जो पाइप है उसके अंदर एयर है। सो इट अगर मुझे पाइप से पानी को नीचे ले जाना भी है सर, देन इट हैज टू कंप्रेस द एयर अबव इट। तो ओके, उसके लिए आई थिंक आई डोंट थिंक सर कि प्रेशर उतना ज्यादा होगा कि कंप्रेस कर सके उसको। ओके, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी सर कि पानी का लिक्विड ड्यू टू द ग्रेविटी वो नीचे थोड़ा सा फॉल हो जाए, बट सर उसके भी हम एम्बिगुअस, बस नीचे से नहीं करना चाहिए उसको। ओके। तुम्हारे कहने का मतलब है इस पाइप में एयर भरी रहेगी, पानी एंट्री नहीं करेगा? जी सर कुछ पोर्शन तो एयर रहेगा सर। कुछ पोर्शन एयर रहेगा। जी अच्छा, और सपोज करो यहाँ से पानी थोड़ा सा अंदर आएगा ना, थोड़ा पानी अंदर आया, ऊपर से थोड़ा पानी अंदर आया, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे खोलेंगे तो पानी तो बाहर बहेगा बहेगा ना, जी ये सर। बात मानते हो? जी मैम। तो इधर वाला पानी इधर से आ रहा है, इधर वाला पानी इधर से आ रहा है, और सेंटर में ना एयर का एक बबल ट्रैप हो गया है। जी अब बताओ क्या होगा? ओके सर, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं सर एयर का, क्योंकि जो एयर है उस पाइप में द मास इज कांस्टेंट एंड आई नो सर इफ आई टेकिंग द टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट सर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्योंकि जैसे पानी ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी आ रहा है, तो अंदर का एयर कंप्रेस होगा, वो सर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो अंदर का प्रेशर भी अब डिक्रीज तुम होगा। बोल रहे थे इनकम्प्रेसिबल है फ्लूइड, अब तुम कंप्रेस कर रहे हो एयर को। जी सर मतलब चलो एयर इनकम्प्रेसिबल मान लो, इनकम्प्रेसिबल एयर भी इनकम्प्रेसिबल है, अब बोलो क्या होगा? इस आसान कर दिया थोड़ा और काम, अब क्या होगा? सर दोनों एंड्स मीट नहीं करने चाहिए सर। मीट नहीं करेंगे अभी। चलो अब एक केस और करते हैं, इसी गिलास में ना मैंने पाइप जो लगाई है उसमें पहले से ही पानी है, तो उसमें पहले से ही वाटर है, तो वाटर से फिल्ड है, दैट इज नॉट एयर, हाँ वो वाटर से फिल्ड है। अब क्या होगा? सर अब मतलब फ्लो पाइप में भी पानी फिल्ड है।
पाइप में भी पानी फिल्ड है एंड बीकर में भी पानी फिल्ड है। हाँ, तो अब क्या होगा? सर मैं कमेंट नहीं कर सकता सर, क्योंकि मुझे अगर मैं फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मान रहा हूँ and I'll apply my Bernoulli's equation at the inlet of that pipe and at the exit of the pipe, तो वहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा सर किसका एनर्जी वहाँ पे ज्यादा है। जिसका एनर्जी ज्यादा होगा सर तो वहां से फ्लो होना चालू हो जाएगा सर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे किसका एनर्जी ज्यादा है? सर इट विल डिपेंड ऑन द थ्री हेड्स, द प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड द पोटेंशियल हेड। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और जो भी तुम बोल रहे हो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर लाइक तो मान लेते हैं अभी ये जो टॉप से जो ये हाइट है ये h1 है और ये जो हाइट है वो h2 है। अब बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, कौन कौन से हेड बोल रहे हो हमें चाहिए? सर हमें प्रेशर हेड चाहिए होगा। प्रेशर हेड चाहिए। प्रेशर हेड कैसे निकलेगा? यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे रो जी, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, रो जी H2 हो जाएगा सर। h2 ओके। यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे नीचे वाले में रो जी H1 हो जाएगा सर। रो जी h1, इसको हम 2 बोल लेते हैं, इसको 1 बोलते हैं आसानी के लिए, 1 और ये 2, ठीक है। जी तो सर। किसके पास प्रेशर ज्यादा है? सर नीचे वाले में ज्यादा है सर, P1 हाइट ज्यादा है ज्यादा P2 से। है। जी सर। अब बताओ दूसरा कौन सा हेड कैलकुलेट करना है? सर पोटेंशियल हेड चाहिए होगा सर। पोटेंशियल हेड। डेफिनेटली H1 इज मोर देन H2। तो कैसे निकालते हैं पोटेंशियल हेड? सर ये तो वर्टिकल हाइट है सर, वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हाँ, तो वर्टिकल हाइट h1 और h2 है, मतलब कितना जी है? सर, H1 इज मोर देन H2 सर। ओके h, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो P2 की क्या है वर्टिकल हाइट? सर 0.2 का, हाँ, सर 0.2 का वर्टिकल हाइट H2 है सर। h2 है और 0.1 का 0.1 का वर्टिकल हाइट H1 है सर। h1 है। तो जी कौन सर। ज्यादा है? सर यहाँ पे H1 ज्यादा है। तो 0.1 का पोटेंशियल हेड भी ज्यादा है, प्रेशर हेड भी ज्यादा है, फिर तो जी यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो गई। जी सर। अभी यस सर ज्यादा हुई सर, बट अब कौन सी चीज रहती है? सर वेलोसिटी हेड भी है सर। वेलोसिटी हेड क्या है बताओ? सर ऐसे वेलोसिटी हेड डिस्प्लेसमेंट वन, होगी। वेलोसिटी हेड टू बताओ क्या है? सर अगर मैं अपना बर्नौलीज एट द सरफेस ऑफ द वाटर एंड एट 0.1 एंड 0.2 में सेपरेटली लगाता हूँ, इन दैट केस सर मुझे वेलोसिटी 0.2 में सर रूट अंडर 2GH2 मिल जाएगा। रूट रूट 2GH2, 2GH1 P1 के केस में। 2GH1 और अंडर रूट 2GH2, ठीक है। जी सर। तो वेलोसिटी हेड भी ज्यादा है, h1 बड़ा है, तो ओवरऑल यहाँ पे तो एनर्जी ज्यादा होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब कुछ ज्यादा है, पोटेंशियल हेड भी ज्यादा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, वेलोसिटी हेड भी ज्यादा है और प्रेशर हेड भी ज्यादा है। तो ये तो फ्लो कर जाएगा इस डायरेक्शन में तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो ये मेरे को लग रहा है सही है, गलत है? सर मैं 1 मिनट सोच सकता हूँ सर। सोचो सोचो। अच्छा, पोटेंशियल हेड नीचे सर नीचे से कैलकुलेट करते हैं कि ऊपर से कैलकुलेट करते हैं? डेटम कहाँ मान के चल रहे हो? सर डेटम हम लोग जनरली नीचे मान के चलते हैं सर। तो कहाँ मान रहे हो डेटम? नीचे कहाँ पे है? सर 0.1 पे मार्क करूंगा सर। अच्छा, 0.1 पे मार्क कर दिया, तो पोटेंशियल हेड 0.1 पे क्या हुआ? ओके हाँ सर, वो 0 हो जाएगा सर। तो 0.1 पे तो पोटेंशियल 0 है, 0.2 पे क्या हुआ? सर सर H2 H1 माइनस H2 हो जाएगा सर। h1 माइनस h2 हो जाएगा, वेरी गुड, अब ठीक हुआ है तुम्हारा। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है। अब पोटेंशियल हेड तुम्हारा 2 पे ज्यादा है, 1 पे कम है, अब ठीक हुआ है पोटेंशियल हेड। अब वेलोसिटी हेड पे भी आओ। जी सर। तो मैं एक्चुअली सर वेलोसिटी एक्चुअली वेलोसिटी हेड कहाँ से निकालोगे? सर मैं ये सोच रहा था सर कि मैं अपने सरफेस ऑफ वाटर से
0.1 एंड 0.2 पे सेपरेटली अगर मैं बर्नौली लगाता हूँ सर, तो इन दैट केस सर मुझे एक्चुअली में V1 और V2 से मुझे 0 मिल रहा है सर। तो अच्छा, वहाँ पे क्यों वेलोसिटी हेड नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा? सर क्योंकि जैसे मैंने जो अपना बेस है सर, मैंने हाँ, गेज प्रेशर निकाला है सर। तो हमें जो गेज प्रेशर पता है सर कि रोजी H1 एंड रोजी H2 है सर एट 0.1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो सर ओके, मैंने जब मैं सरफेस ऑफ वाटर पे अपना बर्नौलीज इक्वेशन लिखता हूँ, P हाँ, atmospheric by rho g plus V square by 2g of the water at the base plus the potential head and equals to the energy at subsequent points। तो अगर सर मैं हाँ, गेज प्रेशर निकालूंगा सर, तो एटमॉस्फेरिक को मैं 0 कर दूंगा, हाँ, कंसीडरिंग द फैक्ट कि जो वाटर का कंटेनर एरिया है सर, इट इज मच मोर देन द होल, तो वेलोसिटी ऑफ हाँ, द कंटेनर भी वहां पे 0 हो जाएगा सर। तो अगर मैं 0.1 के लिए अगर मैं देखूं, तो पोटेंशियल हेड मेरे लिए H1 हो जाएगा अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में सर मेरा पोटेंशियल हेड जो से बचेगा H1। अब सर राइट हैंड साइड में तो मेरा P1 प्रेशर मुझे पता है सर कि यहाँ पे रोजी H2 है। ओके, तो वहाँ पे सर तो H1 टर्म्स यहाँ पे कट जाएंगे, तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 आ रहा है सर। ओके। तो वेलोसिटी 2 पे भी 0, 1 पे भी, दोनों पे 0 है। जी सर, सेपरेटली अगर मैं तो अब तुम्हारे पास सिर्फ प्रेशर हेड रह गया और पोटेंशियल हेड रह गया। जी सर। तो बताओ भी फ्लो किस तरह फ्लो करेगा? सर यहाँ पे प्रेशर P1 ज्यादा है P2 से, एंड यहाँ पे सर मेरा पोटेंशियल हेड जो है 0.2 का ज्यादा है। अच्छा, तो कैसे ज्यादा, कैसे है 0.1 का 0.2 का पोटेंशियल हेड? अच्छा, हाँ, ओवरऑल जो एनर्जी किसकी ज्यादा है, टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा है? मैं एक मिनट सर। बस यही क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद मैं एंड कर रहा हूँ। जी जी। सर सर मेरा एनर्जी दोनों सेक्शन में सेम आ रहा है सर, तो क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा? नहीं सर, मेरा तो एनर्जी सर E1 सेक्शन और E2 सेक्शन में सेम आ रहा है सर इस टाइप से, तो एनर्जी तो हमें अच्छा, बैलेंस हो गया था। तो फिर अगर एनर्जी बैलेंस होगा तो मतलब फ्लो करेगा ही नहीं कुछ? जी सर, वो फ्लो नहीं करेगा सर। अच्छा, चलो ठीक है फिर। वीरेंद्र सर, आपकी बारी है अब। चलो, जब तक सर आते हैं मैं क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ तुमसे। Okay, yes, Dr. यस Zinder, सर। I can start, I think. You can remove this board, right? क्या मैं रिमूव कर दिया सर? Okay. Okay, Sagar, so यस सर। we are going ahead with the BARC entry, right? यस सर। Okay. So, Sagar, let me ask a few questions from strength of material, right? ओके सर। So, what do you understand by the strength of material? Sir, strength is basically defines the ability of the material to resist the maximum load or the maximum stress without failure, before failure. So, you used two terms. One you used as a maximum load, maximum stress, Yes, sir. and the other one that you used is the before failure. Yes, sir. Now, my point is, should I define the strength in terms of load, or should I define it in terms of maximum stress? Sir, in terms of maximum stress. So let us say I'm saying that the strength of this material is, let us say, I'm saying that it is 10 kilonewton. So I will be wrong.
So will be partially right, but definitely, sir, we need to define the cross section. The load जब apply होगा, sir, it will be internal resistive force generate होगा, and when we define the strength with respect to the material, तो sir cross section को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा ना, sir. So do we define the stress at a cross section or at any particular section? Sir longitudinal stress को हम लोग cross sectional area से define करते हैं. So then what should I do? Am I wrong or right? That is my question. You are saying I'm having this material, this component. I'm saying its strength is 10 kilonewton. You are saying no, its strength is 200 megapascal. Sir, Who I is think, right? sir, I think the term is partially correct, sir. So when you How to make it fully correct? I think, sir, the area of the specimen it has to be taken care of as well. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Okay. But the area is already taken care of. Even if I talk in terms of load, more is the cross-sectional area, more is the load you need to apply to reach that maximum stress. Less is the cross-sectional area, less is the load you need to apply to reach the maximum stress. Isn't it? Yes. So whether you talk in terms of stress or whether you talk in terms of load, that is already taken care of. Okay. Okay. And what is this failure? So failure. You are saying that before failure. What is that failure? Sir, failure does not necessarily means breaking of a specimen into two halves. Mm-hmm. I may say that the desired cross-section dimensional of the object, if it changes permanently, then is a failure for us. Mm-hmm. If there is a plastic deformation, I mean, sir. So you are saying that even if it yields, we should consider it as a failed one. Yes, sir. Ductile materials failure. Why should we consider them as a failed one? So, because after I know the fact, sir, that up to the elastic limit, or if to be precise, up to the proportionality limit, the stress is proportional to strain. So, जितना load apply करेंगे वो उतना वो recover कर जाएगा. But yield point, sir, it is basically a point which shows the offset of the elastic behavior of a material. तो जैसे हम उस point को cross करेंगे, sir, तो हमारा material जो है वो plastically deform करेगा. थोड़ा elastic recovery कर सकता है, sir, but there will be a plastic deformation. No, so should I consider that as a failed one or not? That is my point. Yes, sir, we should. Okay. So do you have any mild steel components around you or kind of materials around you? No, sir. No. You have a fan. Oh, yes, sir. You are having a fan rod. Yes, sir. Okay. Okay. One day you decided, okay, I want to try whether this can sustain my load or not. Okay. You stop it. You hold it with your hands. And what happened, that rod, which is roughly, let us say, a particular length, it yielded permanently by an amount 0.01 mm. Okay. Right? Okay. So, has it failed now? Material is ductile. It has been permanently deformed. So my question is, has it failed? Because it has yielded. Sir, yes. Sir, I think, as I earlier said, sir, that failure does not necessarily means breaking into two halves. But as you said, sir, the material has some permanent deformation because of the weight applied. So even if I continue to use that fan, तो जो fan का जो weight लग रहा है, sir, that may affect that deformation because the dimensional changes have been taking place. क्योंकि अगर length increase हुआ है 0.1 mm से,
देन डेफिनेटली सर उसका जो डायमीटर है वो डिक्रीज करेगा। एंड सर्टेन पॉइंट के बाद सर फिर what has happened to its strength? सर स्ट्रेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ तो उतना ही रहेगा सर जितना पहले की था। Even after permanently deforming, its strength will remain same? नो सर, आई थिंक स्ट्रेंथ स्लाइटली इंक्रीज करेगा सर, बट वो स्ट्रेन हार्डनिंग का केस हो जाएगा सर, तो डिफरेंट है। If it is plastic deformation, then it is a strain hardening. यस सर। So you have a rod now which is having more strength, and it has plastically deformed by a very small amount, which is almost not going to affect your performance of your fan. So now point is, has it failed or not? If it has failed, then why you will call it as it has failed? Okay, I can see this your window also. There are some rods right over there. Yes sir. One day you decided to push them. You open the window and you try to push them slightly, and it's slightly bent. Yes sir. By an amount, very small amount. Has it failed? Will you change the window, whole window? सर इसको फेलियर मतलब इन दैट टर्म्स ऑफ नहीं कहेंगे सर, बट जैसे मैंने कहा सर कि डिफॉर्मेशन होगा तो उसमें यील्ड स्ट्रेस उसका इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज अ स्ट्रेन हार्डनिंग केस। अच्छी बात है ना, इट्स गुड, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। फैन की रॉड है, उसकी स्ट्रेंथ कम थी पहले, स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण आपने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, इससे अच्छा और क्या चाहिए? इसे बट वो अगर रिपीटेडली करते रहेंगे सर तो वो उसकी डक्टिलिटी कम होती चली जाएगी ना सर। नहीं, हमने तो थोड़ा सा किया ना, हमने तो केवल उतना ही किया। आपने बोला यील्ड करवाना है, हमने करवा दिया बस। आप भी यही बोल रहे थे, इफ इट विल यील्ड आई विल कंसीडर एज ए फेलियर। तो मैंने कहा भाई ये ऐसा करते हैं, बहुत थोड़ा सा यील्ड करवाते हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा करवा दिया हो सकता है फिर अदर पैरामीटर्स आल्सो आई नीड टू सी की मिनिमम कितनी होनी चाहिए एंड ऑल दैट। थोड़ा सा करवा दिया, आपको डिफॉर्म करवा दिया। सो शुड आई कंसीडर एज ए फेल्ड वन? दैट इज माय क्वेश्चन। Okay, so since you talked about strain hardening, let me just ask one question: why the strain hardening takes place? Sir, it is basically जो हम लोग work done करते हैं material पे, तो the work done which is being done is somehow being stored inside the molecules of the specimen. तो जब हम load को remove करते हैं sir, that work which has been stored inside the specimen is returned back as उसका जो specimen changes cross section आए थे, तो वर्क डन जो वो रिलीज करेगा सर, वो अपने स्पेसिमेन के डायमेंशंस को वापस ले आता है सर। सो दैट इज द केस। स्ट्रेन हार्डनिंग से करने से सर, यस सर। नो, बट उसका स्ट्रेन हार्डनिंग से क्या लेना देना सर? वो ओके, सॉरी सर, दैट वाज द केस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी सर। सो माय क्वेश्चन इज स्ट्रेन हार्डनिंग, कि व्हाई द स्ट्रेन हार्डनिंग टुक प्लेस? सर आई थिंक बिकॉज ऑफ द atomic and the crystalline structural changes, the resistance against the applied load, the deformation increases. तो जो आपने atomic और structural changes आ रहे हैं सर, उसके वजह से वो resistance ज्यादा ऑफर कर रहा है सर। तो क्या चेंजेस आए, ऐसी क्या चेंजेस आई जिसके कारण स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड? सर जैसे हमारे दो बॉन्ड्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं सर, उनके बीच में बॉन्ड है, तो हमारे लोड अप्लाई करने के बाद सर जो दो मॉलिक्यूल्स है सर, दे विल ऑलवेज ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। पर सर हमारे एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने की वजह से सर वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ नहीं रहे हैं, दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन। तो पोजीशन चेंज करने की वजह से सर अंदर मटेरियल में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। तो उस केस में सर हमारा दैट इज माय क्वेश्चन, ऐसे क्या चेंजेस आए जिसके कारण आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई? सर आई थिंक the elasticity of the bond यहाँ पे टूट गया सर, जिसके वजह से वो मटेरियल अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाया वापस, और उसी स्टेट में रह गया। तो उसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए थी, उसने तो एनर्जी लूज कर दी रहा था जितनी थी उसके पास उसको स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की। आपने तोड़ा उसको, एनर्जी उसकी जो है लॉस कर दी आपने।
तो इससे तो उल्टा होना चाहिए था, इसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए थी। एक तरफ आप स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो नहीं मैंने उसको तोड़ा। सर ओके सर, तोड़ना तो बेसिकली सर उसको we would definitely require a larger amount of stress, but sir नहीं तोड़ना मैंने बताया कि आपका बॉन्ड तो टूटा ही, कुछ एक का तो टूटा जी कम बॉन्ड। हाँ सर, तो स्ट्रेन हार्डनिंग जो रीजन है सर, इट इज वेल विद इन द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल, तो हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल को क्रॉस नहीं कौन सी करेंगे। स्ट्रेंथ? अच्छा चलो ठीक है। तो सागर कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण? सर यील्ड स्ट्रेस इंक्रीज हो जाती है सर। यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ? यील्ड स्ट्रेंथ सर, सॉरी। पर स्ट्रेंथ तो प्रॉपर्टी है, आपने खुद ही कहा अभी कि स्ट्रेंथ तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ये सर यील्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऐसे वही प्रॉपर्टी है सर। यील्ड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी नहीं है सर, प्रॉपर्टी होगा सर, क्योंकि वो एक हर एक मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है सर। है कि नहीं ये बताओ आप। सर प्रॉपर्टी है सर, सॉरी अगर है तो चेंज नहीं होगी। आपने कहा कि देखो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो चेंज नहीं होती, तो यहाँ तो आपने चेंज कर दी, आपने बोला स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। सर अब सब मेरा आई थिंक वही रीजन है सर कि ड्यू टू दी स्ट्रक्चरल चेंजेस यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल का इंक्रीज करना चाहिए, बट द पॉइंट इज दैट वी आरंट क्रॉसिंग द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, कि उसके बाद से सर फिर इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। अच्छा चलो एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, तो फीडबैक दूंगा मैं आपको। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपने स्टडी किए हैं। चलो छोड़ो, मैं कोई और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। लेट्स से आई एम हैविंग ए विंड मिल। विंड मिल देखी है आपने? जी सर, देखा सर। तो विंड मिल में आई होप यू कैन विजुअलाइज होल स्ट्रक्चर। मुझे बताओ कि कौन कौन सी स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप होंगी जो आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर है, जो पाइप बोलो टेपर्ड पाइप है जिसके ऊपर होल स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड। सो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट लोड्स विल यू कंसीडर? लोड ही बता दो मुझे कि कौन कौन से डिफरेंट लोड कंसीडर करोगे इसको डिजाइन करने के लिए जो वर्टिकल पाइप है। सर पहला, अगर मैं सेल्फ वेट कंसिडर कर रहा हूँ उस वर्टिकल पाइप का, तो एक सेल्फ वेट आएगा उसका। ठीक है। दूसरा सर, जो मेरा मेन कंपोनेंट है जो रोटेट कर रहा है, दैट विल एक्सर्ट अ फोर्स, तो उसकी वजह से बेंड हो सकता है, तो एक बेंडिंग मोमेंट आएगा वहां पे। और डेफिनेटली सर एक विंड मिल है, तो डेफिनेटली विंड का फोर्स वहां पे लगेगा, तो विंड के फोर्स को भी वहां पे लेना पड़ेगा सर। यस सर, ये तीन फोर्सेस हैं, एंड डेफिनेटली रिएक्शन तो नीचे आएगा ही ग्राउंड से। इसके अलावा कोई और फोर्सेस हैं जिसका आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, इम्पैक्ट कंसिडर करना पड़ेगा? ओके सर नहीं सर, नहीं। ओके ठीक है, चलो ठीक है सागर, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। ठीक है। Yes, तो मैंने वैसे तो क्वेश्चंस बहुत बेसिक पूछे, बट ठीक है, ऐसा है कि दे विल ट्राई टू उसी में घुमाएंगे आपको। सिंपल सी चीज होगी बट आपको थोड़ी सी उसके ऊपर जो क्लैरिटी लानी है। जैसे स्ट्रेंथ मैंने पूछा, तो स्ट्रेंथ मैंने बोला कि किलो न्यूटन की मेगा पास्कल। देखो भाई, मेगा पास्कल मतलब क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि वो मटेरियल उस मटेरियल के लिए फिक्स हो जाती है वैल्यू। ये माइल्ड स्टील का बना है, अब साइज इसका चाहे ये है, ज्यादा है, कम है, कुछ भी है, आई एम नॉट बॉदर्ड। अगर मैं बोल दिया इतने मेगा पास्कल के ऊपर यील्ड करेगा तो करेगा उसके ऊपर, साइज चाहे मैं कुछ भी ले लूं, क्योंकि वो पर यूनिट एरिया के ऊपर है। पर अगर मैं साइज फिक्स कर दूं तो आई कैन टेल दैट इन टर्म्स ऑफ फोर्स आल्सो, सिंपली एरिया से मल्टीप्लाई करना है। सो आई कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स एज वेल एज स्ट्रेस आल्सो, दोनों में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बट फोर्स के साथ डिफिकल्टी ये है, फिर वो उस कंपोनेंट के लिए ही फिक्स हो जाएगी वैल्यू। जबकि स्ट्रेस के टर्म में डिफाइन करूंगा तो उस मटेरियल के लिए फिक्स होगी, वो मटेरियल का साइज कुछ भी ले लो, फिर इजी है ना बात करना। फिर तो ये मैं आंसर चाह रहा था कि इस तरीके से आप बात करते हैं बिफोर फेलियर। अच्छा, फेलियर जो है, देखो आप फेलियर यील्ड क्यों लेते हो? नॉट जस्ट बिकॉज ये यील्ड कर गया, इसलिए नहीं, क्योंकि उसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है। हाँ सर, ये पैरामीटर रहेगा आपका।
जैसे जो एग्जांपल दिए उसमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं हो रही है, शाफ्ट है, बीरिंग के अंदर रोटेट कर रहा है, हल्का सा ही बेंड कर गया, क्या होगा? रॉक करेगा बीरिंग में, डैमेज कर देगा यहाँ पर, नॉइज वाइब्रेशन, जी सर, इवन बाई स्मॉल अमाउंट। तो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल हैम्पर करेगा, बिल्कुल करेगा, ये करना है आपने। ओके, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। एंड आफ्टर दैट स्ट्रेन हार्डनिंग, ऐसा करो, स्ट्रेन हार्डनिंग का मेरे ख्याल वीडियोस पड़े हैं पैनल के ऊपर, उसको देख लो। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग का कंसेप्ट आपको पता नहीं है, वैसे तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, जैसे मैंने बोला डिफॉर्म करके दे दिया। देखो प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, बट प्रोवाइडेड अगर मुझे आप ये देते हो कोई एक पर्टिकुलर क्रिस्टल एक स्ट्रक्चर दे दिया, और जब मैं डिफॉर्म कर दे रहा हूँ, उसको शेप ही चेंज कर दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर रहे हो आप। जब चेंज हो गया तो वो प्रॉपर्टी चेंज होगी। हाँ, तो, ठीक है, तो अगर स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। जी सर, मैंने वो जो पॉइंट कहा था सर कि बॉन्ड्स चेंज हो रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, वो डिसलोकेशन के टर्म में बात करनी पड़ेगी, वो वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही है, वो आपने अपनी तरफ से बनाई। आप अपनी तरफ से बनाई हुई एक्सप्लेनेशन के ऊपर भरोसा मत करो। एटलीस्ट अगर आपके पास लिटरेचर है, क्योंकि आपको कंसेप्ट अगर पता नहीं है तो आपने कुछ स्टोरी तो कुछ भी बना सकते हो। अगर बैठ गई ठीक तो ठीक है, नहीं बैठी तो गलत, तो वो नेगेटिव होगा ना आपके लिए। ओके सर। तो ऐसा नहीं करना, जहां बहुत क्लैरिटी नहीं है तो आप या तो उनसे परमिशन ले लो कि सर आई वांट टू ट्राई, अगर आप परमिशन दोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, और देन लास्ट में मैंने विंड का देखा, तो इवन तो आपने कंसीडर कर लिया, पर ये भी देखो कि अगर मान लिया वो ऊपर स्ट्रक्चर है, अगर विंड जो उसके परपेंडिकुलर ब्लो करेगी तो उसको रोटेट करने का काम कर सकती है, ऐसे टॉर्शन भी आएगा। ठीक है, तो आपने सोचना है वहां पर ऑल द पॉसिबल केसेस, ये नहीं बताना है कि ये दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है। इसलिए मैंने मौका दिया था, मैंने कहा कोई और है, इसका मतलब है कि यू नीड टू थिंक ओवर देयर। सर मैं एक्चुअली जो शाफ्ट जो रोटेटिंग पार्ट है सर, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं सोच रहा था, बट उसका इफेक्ट तो उस पर नहीं आता। नहीं, जो भी है आप सोचो ना, सोचने के लिए थोड़ी रोकेगा वो, 1 घंटा वो इसीलिए तो बिठा के रखेगा, आपको सोचने के लिए मौका देगा। तो सोचो, जो जो सोच सकते हो पॉसिबल है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, चलो चलो, ये थोड़ा सा इन एरियाज के ऊपर ध्यान दो सागर, राइट। एंड नाउ ओवर टू अदर मेंटर्स, तो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। ओके सागर, मैंने तुमसे बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल हीट जनरेशन था, इंटरनल हीट जनरेशन का था, तो उसमें तुमने सही आंसर किया, लेकिन एक एग्जांपल जो तुमने कटिंग की थी ना, कटिंग इज नॉट इंटरनल हीट जनरेशन। कटिंग तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इंटरनल हीट जनरेशन में जैसे वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से वो मटेरियल हीट जनरेट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जहां भी केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे न्यूक्लियर रोड है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मली हो रही है पूरे मटेरियल में। ठीक है, समझ रहे हो ये बात को? सिमिलरली बैटरी सेल्स जो होते हैं, जितने भी घर पे अपन घड़ी में यूज करते हैं, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से उसका हीट जनरेशन उसमें हो रही है। केमिकल जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, वो हीट बाहर छोड़ेगी। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो पूछा वो था कंपोजिट मटेरियल का। कंपोजिट मटेरियल वाला क्वेश्चन मेरे को 8 साल पहले बार्क की इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, उसमें सिंपल उन्होंने बोला भी प्रोफाइल ड्रा करके बताओ। अब पहले क्वेश्चन मैंने तुमसे कहा भी ये क्या अनस्टेडी है कि स्टेडी है, तुमने कहा भी सर इसको स्टेडी मान सकते हैं क्योंकि कंडक्टिविटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो स्टेडी वो होता है, मतलब कंडक्टिविटी अगर चेंज ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तुम किसी भी हॉट मटेरियल को कोल्ड सराउंडिंग में रख दोगे या कोल्ड मटेरियल को हॉट सराउंडिंग में रख दोगे तो वो एक अनस्टेडी प्रॉब्लम है। तो उसमें टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा ये तुम्हें बताना है। और नंबर 2, ये बात मान लो भी कोई भी कंपोजिट मटेरियल है, सपोज करो ऐसे जोड़ दिया मैंने 2 कंपोजिट मटेरियल, इसके थ्रू हीट फ्लो करने की कैपेसिटी ज्यादा है, दूसरे मटेरियल जो साथ में जोड़ा उसकी हीट कैरी करने की, मतलब पास करने की कैपेसिटी कम है। तो ओवरऑल इस मटेरियल की जो ओवरऑल, मतलब अब जो दोनों साइड जोड़ दिए, इस तरफ हीट ने फ्लो करना है, तो उसकी हीट कैपेसिटी, मतलब हीट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी कम होगी। जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर से वो कम हो जाएगा। तो जो तुमने स्लोप बनाई वो स्टेडी स्टेट के टाइम काम आती है, लेकिन जो हम ये अनस्टेडी बना रहे हैं,
तो अगर मैं तुम्हें जस्ट एक सिंपल उसका बना के दिखाऊं ना, तो उसके अंदर इस तरह वेरी करेगा। ये देखना, ये कंपोजिट मटेरियल है, ये 100 है, ये 100 इनिशियली अंदर का टेम्परेचर कम होगा, तो ये इस तरह कुछ कम हो, ऐसे होगा। तो ये दोनों टेम्परेचर सेम होंगे इनिशियली, धीरे धीरे ये टेम्परेचर की प्रोफाइल आप आपस में आती जाएंगी और स्टेडी स्टेट में ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, हर पॉइंट पे टेम्परेचर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंपोजिट मटेरियल बन गया K1 K2। इंटरफेस पे टेम्परेचर निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या है, जितना हीट इधर से आ रहा है इतना हीट इधर बाहर जाएगा। इंटरफेस कोई हीट अपने पास रोक के नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो एक तो ये कंडीशन है, और जो टी आई अगर इधर से कैलकुलेट करूंगा तो वो भी टी आई आएगा, इधर से कैलकुलेट करूंगा तो भी टी आएगा। तो माइनस के डेल टी बाई डेल K1 डेल टी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस के डेल टी बाई डेल K2 डेल टी बाई डेल एक्स। ये आएगा इंटरफेस कैलकुलेट करने का टेम्परेचर, मतलब इंटरफेस कंडीशन बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ यूज होगी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बार्क इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे पाइप लगा दूंगा तो प्रेशर तो इस तरह इंक्रीज कर रहा है, तो इधर प्रेशर हेड ज्यादा है, इधर प्रेशर हेड कम है, लेकिन डेटम हेड ऊपर कम है, नीचे ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है। तो ओवरऑल एनर्जी बैलेंस है, जिसकी वजह से कोई एक बार जब भर गया तो कोई फ्लो नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। एक बार ये भरेगा, और अगर कोई तुम जैसे बोल रहे हो एयर ट्रैप हो जाएगी, एयर बबल का जो डेंसिटी है वो कम होता है वाटर से, वो बबल बन के बाहर निकल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, इट विल फ्लो आउट, ठीक है। तो ये सिंपल सा एनर्जी बैलेंस करना, तुमने खुद एंड में बोल दिया भी ये तो सर सेम आ रही है, तो सेम आनी है, ठीक है। इस केस में सेम ही आएगी क्योंकि इसमें ऐसा है, ठीक है। ये सिंपल था, थोड़ा सा बस उधर सोच के जवाब देना है, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते उनके, थोड़ा सा बस माइंड ट्विकिंग होते हैं, थोड़ा ट्वीक होती है उसमें, तुम्हें समझना है भी ये चाहते क्या है तुमसे। सिंपल टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी और तुम्हें कुछ नहीं करना था, ठीक है। यस सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर। Okay, so Sagar, as far as thermodynamics is concerned, I started with quality of energy and all, but you were not very clear about quality of energy. Quality of energy, high grade, high quality energy is that energy which can be completely converted into other forms of energies. Like work can be converted into heat, but heat cannot be converted into work. Now, renewable energies are high quality in the sense that they can be converted. Energy wastage is less in harnessing, I mean in conversion. Like kinetic energy is a high grade energy itself, high quality energy. Heat energy is not a high grade energy. So chemical energy, then combustion, then loss of heat energy in engines, so those kind of energies are not high grade energies that way. So maybe from there you could have understood the concept of quality of energy, and you could not have mixed it with quality of this available energy and other things. They are different concepts. So that is what point was coming. And then questions like rubbing hands, that question was also asked in BARC. So the questions which I asked you, they were more or less asked in the BARC exams. That is how we asked you. That is how it was there. But your response was not very good. But yes, in rubbing hands, you were on the right track. Just think before you answer. Don't be in a hurry to answer the questions, because they will not ask you straight questions. The question will be based upon your actual knowledge, So the blunder which you did in the beginning was when you said that, third law says that entropy is constant at absolute zero. Now this statement says that absolute zero is attainable. Entropy at absolute zero is constant. That is what you said. Whereas third law says that entropy zero or absolute zero cannot be attained. When it cannot be attained, then what is the question of calculating entropy or internal energy or enthalpy? Then you were in trap. What is enthalpy there, sir? This. What is internal there? This. That means you are calculating all these terms at absolute zero, and then you are in the trap. That was a blunder actually. So मतलब लॉस तो पता होने चाहिए ना यार. Absolute zero तो आप measure कर ही नहीं सकते. Does not exist. That is a law. When it does not exist, how can you measure entropy at that? So वहां से गड़बड़ हो गई. उसके बाद क्वालिटी ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट आ गया, फिर रबिंग हैंड्स का कंसेप्ट आ गया, नई नई चीजें आ गई. अंडरस्टैंड दैट? So BARC interest typical. This is the feel you should get. The kind of questions which mentors asked you. Yes. And आपसे वैसे you do analysis.
why you made the mistake. Do self analysis कि आपसे गलती क्यों हुआ, and you will understand अच्छा यार ये होता है. आता सब है आपको. अब ऐसा तो नहीं है कि आपने थर्ड लॉ नहीं पढ़ा है तो गलती क्यों हुआ. ऐसा तो नहीं कि आपने क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ा, सेकंड लॉ इज क्वालिटी ऑफ एनर्जी होगी, तो गलती क्यों हुआ. ऐसा तो नहीं है कि आप रबिंग द हैंड्स में मिस्टेक कर दोगे यार, रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता नहीं है. But they will not ask you direct question, they will ask question on the basis of your understanding, right? So we don't read some subject only for the sake of reading. We read a subject for application part. So you need to think what is the application part of that. Yes. That is where we need to improve, right? And in BARC mocks, BARC preparation, we don't say whether you are prepared or not. We cannot say that. Actually, it is difficult. But we only can say this is the mistake, improve it. And just find out the way how to go for it. Do your self analysis, right, Sagar? Yes, sir. Chalo, then I take leave of you, Sagar. Yes, sir. Thank you, sir.